سنیے سنیے، جب میں چلاتی دل سے آواز لگاتی کربلا کی طرف آ رہی تھی تو اسی گھر سے آواز آئی تھی، بیٹی سکینہ کہاں ہو، ادھر آ، تیرے بابا کا جسم یہاں موجود ہے۔ اکثر علماء کرام خلافت کر کے اپنا موضوع بناتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جس کا ترجمہ بھی آپ نے بارہا سن رکھا ہے اور حصول برکت کے لیے پھر سے تلاوت بھی کیا ہوں اور ترجمہ بھی بتا رہا ہوں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، آسان زبور احکام میں سنیے، جو راہ خدا میں گردن کٹا دیں وہ مرا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ سب کے سب زندہ ہیں۔ سبحان اللہ، راہ خدا میں کٹ جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے۔ سنیے، آپ نے 1 محرم سے لے کر 10 محرم 11 محرم 10 محرم تک متعدد محفلوں میں، مجلسوں میں، جمعہ میں خطاب کربلا کے حوالے سے سماعت کیا ہے کہ علی اکبر کیسے شہید ہوئے آپ نے سن رکھا ہے، 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر کیسے شہید ہوئے آپ نے سن رکھا ہے، حضرت عباس جیسا جانباز بھائی کیسے حسین کا شہید ہوا یہ آپ جان چکے ہیں، حضرت اولو محمد جیسے پھول سے بھی زیادہ نازک بھانجے کیسے شہید ہوئے ہیں آپ نے کسی نہ کسی سے سن رکھا ہے، حضرت قاسم کی جوانی کربلا کے میدان میں کیسے تاراج کر دی گئی آپ نے سن رکھا ہے، حضرت حر بن یزید ریاحی کیسے شہید ہوئے حسین کے لیے آپ نے وہ بھی سن رکھا ہے۔ حضرات محترم، میں چاہوں تو علی اکبر کی شہادت بیان کر سکتا ہوں، 6 ماہ کے علی اصغر کی شہادت کا چرچا کر کے آپ کو یہ سمجھا سکتا ہوں کہ حسین کے ساتھیوں میں یا آج بھی جو لوگ راہ خدا میں کٹ جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے بلکہ کٹنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، لیکن آپ نے سب کچھ سن رکھا ہے، آپ نے سب کو جان لیا ہے کہ کیسے وہ لوگ شہید کیے گئے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہو کر راہ خدا میں گردنیں کیسے دی ہے، کیسے ہمت و جرأت کا مظاہرہ کیا اور باطل طاقتوں کو کیسے کربلا کے میدان میں خاک میں ملاتے ہوئے راہ خدا میں اپنی جان کی قربانی کر کے اسلام کے عظمت کے پرچم کو بلند و بالا کر دیا، جس کی قربانی امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے اپنی جان کی دے کر اسلام کو زندہ کیا ہے، وہ اسلام ہمارے گھر تک پہنچا ہے۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے سر پر جو ٹوپی رکھنے کا طریقہ اور ٹوپی رکھنے کا موقع مل رہا ہے کیا ہماری محبت ہے، کیا ہماری محنت کا نتیجہ ہے؟ نہیں میرے دوستو، یہ حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آپ کے سر پر ٹوپی ابھی سجی ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو قرآن ہے وہ ویسے ہی اب تک آ گیا ہے؟ نہیں میرے دوستو، جب علی اکبر جیسا جوان شہید ہوا ہے تب قرآن آپ کے گھر پہنچا ہے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ کے گاؤں میں مسجد کے مینارے ایسے ہی چمک رہے ہیں؟ نہیں میرے دوستو، جب علی اصغر جیسا عمر کے حساب سے چھوٹا مگر حوصلے کے حساب سے بہت بلند بچے نے اپنے جان کی قربانی دی ہے تب اسلام آپ تک پہنچا ہے۔ اور میری ماں بہنوں، آپ کیا سوچ رہی ہے کہ آپ کے سر کا دوپٹہ ایسے ہی سلامت ہو گیا ہے؟ نہیں میری ماں بہنوں، آپ کے سر کے دوپٹے کی حفاظت اگر کسی نے کی ہے تو کربلا والے حسین نے اپنے خاندان کی اس کی حفاظت کی ہے، آپ کے وقار کی حفاظت کی ہے۔ قسم خدا کی اگر آپ نے بعد کربلا 2-4 منٹ سن لیا تو پتھر دل انسان بھی رو بیٹھے گا، کیونکہ مرحلہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور اگر سننے کا مزاج ہے 10 منٹ لوں گا آپ کا اور تھوڑی دیر بولوں گا اور بقیہ پھر کبھی بول دوں گا، مگر 10 منٹ میں جہاں تک ہو سکے گا سناؤں گا۔ جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں کربلا کے بعد کیا ہوا وہ ہاتھ اٹھا کر بولے یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ جملہ آ گیا ہے کہ پورے کربلا کی کتاب زندگی کے صرف 2 چہرے، پوری کربلا کی زندگی کی کتاب اگر سامنے رکھ دی جائے تو اس کتاب کے صرف 2 پنے۔ کربلا کی کتاب زندگی کے صرف 2 پنے
पन्ने का नाम है इमाम हुसैन। सब बोलिए सब बोलिए सब बोलिए। एक पन्ने का नाम है और दूसरे पन्ने का नाम है हजरत सज्जदा ज़ैनब कुबरा। सुभान अल्लाह। मोटी बातें कह के मैं थोड़ी देर बोलना चाहता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपना घर का घर लुटाकर इस्लाम बचा दिया है। इसलिए बोल रहा, इसका मतलब ये नहीं कि ये हल्की बात है, ये बहुत भारी बात है। हल्का बोलूं तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपना पूरा खानदान और कुंबा रुखा अवानो अंसार की गर्दनें कटा कर इस्लाम को बचा दिया है। और उस इस्लाम के बचाने के बाद जो करबला के मैदान में कुछ लोग बच गए, उस बचे पिटे काफिले को बचाकर बहिफाजत करबला से कूफा, कूफा से दमिश्क होते हुसैन की बहन ज़ैनब मदीना पहुंचाकर घर घर इस्लाम पहुंचा दिया है। सुभान अल्लाह। बेशक। तो यहीं पर एक जुमला सुनिए मर्दों। अगर आपको अपनी जिंदगी में इनकलाब लाना हो तो आप भी करबला चलो। मुस्कुरा कर बोलिए। और मेरी माँ बहनों, अगर आप भी चाहती हो कि इज्जतों नामूस की जरिए मुहाफिज की शक्ल में इस्लामी माहौल मिल जाए, तो आप भी करबला चलिए, जहां इमाम हुसैन मर्दों के सर के ताज बने हैं, वही ज़ैनब औरतों के सर की चादर बन गई है। सुभान अल्लाह। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, माहे मुबारक, माहे मुबारक, शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात आगे तो मैंने कह दिया। तो करबला के सिर्फ दो रुख हैं। इमाम हुसैन की शहादत तक इमाम हुसैन ने वो अज़्म इस्तक़लाल का पहाड़ बनकर खड़े रहे। जब इमाम हुसैन की शहादत हो गई सजदे की हालत में ना, उसके बाद जालिम यजीदियों ने खूब जुल्म करना और बढ़ा दिया जुल्म करना। और मामला ये हुआ, जुमा का दिन था, इमाम हुसैन सजदे में गए। उधर इतराज की तरफ मुझे नहीं जाना चाहता। कुछ लोग कहते हैं कि जुमा क्यों ना पढ़े। मेरे भाई, ये मसला तो एकदम साफ है, सूरज की तरह रोशन है कि मुसाफिर पर जुमा की नमाज नहीं है। जुमा की नमाज मुसाफिर पर नहीं है। और तकरीबन मदीना शरीफ से 1731 किलोमीटर है। 1731 किलोमीटर। आज के डेट में 18-19 घंटा लगते हैं, जो बहुत तेज रफ्तार सवारी पे आप जाए तो। मगर मदीना से सफा से इसी तरह होते होते 14 मकामात पर इमाम हुसैन ठहरे थे। 14वां मकाम करबला है। तब करबला पहुंचे थे और 8 ज़िलहिज शरीफ को मदीना से चले थे और 2 मुहर्रम शरीफ को करबला पहुंचे थे। सुभान अल्लाह। 8 से चले और 2 मुहर्रमुल हराम को करबला पहुंचे थे। कितना लंबा सफर, पहाड़ी का इलाका, रेगिस्तानी इलाका, धूप की तपिश, उसमें बाल बच्चे औरतें सबको लेकर जा रहे हैं। अब सोचो मेरे दोस्तों, क्या आप समझते हैं कि हम ऐसी बिरयानी खा रहे हैं, ऐसे ही हम इस्लाम वाले हो गए हैं? मेरे भाई खूने जिगर हुसैन ने पेश किया है ना, तब हमें और आपको मुस्कुराने का मौका मिला है। करबला वाले हुसैन ने अपने घर को लुटा दिया है ना, तब हमारे घर में इज्जत अजमत के चादर मुदार होते हैं। सुनिए, जब इमाम हुसैन की शहादत हो गई थी, गौर से सुनिएगा, करबला के मैदान में इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब
जब वक्त खत्म होने लगा, सूरज गुरूब होने लगा, जब वो रात आई ना, 11वीं की रात आई है, 11वीं की रात आ रही है, उसी शाम को लोग शाम गरीबा कहते हैं। आखिर क्यों उसी शाम को शाम गरीबा कहते हैं? क्योंकि वो शाम आ रही है तो जुल्मतों का पहाड़ अपने दामन में लेकर आ रही है। जब वो 11वीं की रात आ रही है ना, तो मुसीबतों का तूफान लेकर आ रही है। जब 11वीं की रात आ रही है ना, तब मसाइब वो आलाम के बादल को अपने साथ लेकर वो रात आ रही है। करबला के मैदान में अब कोई यजीदी कुत्ता नहीं है, सबके सब साइड हो चुके हैं। करबला का मैदान है और सर छुपाने के लिए यजीदियों ने इमाम हुसैन के घर के लोगों के लिए खेमा भी नहीं छोड़ा था, खेमे को जला दिया गया था। मगर उस आगो गया मंजिल में मकाम पर हुसैन के घर वालों के कुछ लोग रह गए थे। करबला के मैदान में जहाँ सर छुपाने के लिए कोई शामियाना नहीं है, आसमान का खुला हुआ शामियाना है, जमीन का खुला हुआ फर्श है। उस मैदान करबला में कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम खाना खाए कि नहीं खाए, तुम पानी पिया कि नहीं पिया, तुम्हारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग भूखे प्यासे हैं या कुछ खा लीजिए है। गौर से सुनिएगा, करबला के मैदान में 11वीं की जब रात आई है ना, तो वो भू का आलम है, हर तरफ सन्नाटा है, तारीकी ही तारीकी है, हर तरफ खौफनाक मंजर है। दिल दहलाने वाली हवा की सनसनाती हुई आवाज जब बच्चों के कानों से टकराती है तो बच्चे सहम जाते हैं, क्योंकि करबला के मैदान में अब कोई यजीदी नहीं है, सब अपने खेमे में जा चुके हैं और अक्सर सुरूर की महफिल सजा चुके हैं। शराब के अड्डे को आबाद वो लोग कर रहे हैं और इधर करबला के मैदान में उनके घर की बेटियां और बेटे हैं जिनके लिए अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया है, उनके घर के बच्चे हैं और कमो बेश 14 अफराद पर मुश्तमिल एक छोटा सा काफिला है, हुसैनी काफिला है। उसी काफिले में हजरत इमाम हुसैन की 2 बहन, हजरत इमाम हुसैन की 2 बीवी और एक रिवायत के मुताबिक 3 बीवी, हजरत उम्मे रुबाब उसी करबला के मैदान में, हजरत शहरबार उसी करबला के मैदान में, हजरत ज़ैनब कुबरा जो हुसैन की बहन है उसी मैदान करबला में है और उनके साथ 6 महीने, उनके साथ 5-6 साल की बच्ची सकीना इमाम हुसैन की जो बेटी है उसी करबला के मैदान में है। और गौर से सुनिएगा, हजरत इमाम हसन का एक बेटा जिनका नाम हसन मुसन्ना है वो भी उस करबला के मैदान में है। हुसैन के घर की एक नौकरानी खादिमा जिनका नाम फिज़्ज़ा है वो भी करबला के मैदान में है। इस तरह से कमो बेश 14 अफराद पर मुश्तमिल एक काफिला है जो करबला के मैदान में पड़ा हुआ है। सब छुपाने के लिए घर नहीं है, सब छुपाने के लिए शामियाना नहीं है और हर तरफ से डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन जब तक हुसैन तन और सर के साथ रहे तो हजरत ज़ैनब खेमे के अंदर तिलावत पर तिलावत करती थी, नमाज पर नमाज पढ़ती थी, अल्लाह अल्लाह की रट लगाए रहती थी। और जैसे ही हुसैन की शहादत हो गई है तो अब इमाम हुसैन की बहन हजरत सैयदा ज़ैनब हुसैन का किरदार लेकर आगे बढ़ रही है। सुभान अल्लाह, हुसैन का किरदार लेकर आगे बढ़ती है। यहाँ ज़ैनब महसूस करती है कि यहाँ बाबा अली को होना चाहिए तो बाबा अली का रोल लेकर आगे बढ़ती है। जहाँ जब महसूस करती है कि यहाँ माँ फातिमा को होना चाहिए तो फातिमा का किरदार लेकर हजरत ज़ैनब आगे बढ़ती है। जहाँ ये सोचती है कि यहाँ कासिम को होना चाहिए था तो कासिम का किरदार लेकर आगे बढ़ती है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन की बहन है मगर ज़ैनब कुबरा है, अब अपने काफिले वालों की पहरादारी कर रही है। एक टूटा हुआ खंजर उठाती है और चारों तरफ पहरा देना शुरू कर देती है। गौर से मेरी बातों को सुनिएगा और अगर आपका दिल रोने पर मजबूर हो जाए तो आप उसको रोकिएगा नहीं बल्कि आप अपने दिल को रुला दीजिएगा, क्योंकि जो हुसैन की मोहब्बत में दिल रोता है उसी का जन्नत में मकाम होता है। सुनिए, ज़ैनब कुबरा है एक टूटा हुआ खंजर अपने हाथ में उठाती है। 11वीं की रात आई है। अब इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब अब चारों तरफ घूम घूम कर पहरा देती है और ये कहते हुए कि मेरे कोई काफिले वाले को न सताए, मेरे घर के लोगों को अब कोई परेशान न करे, बहुत परेशान कर चुके हो। मेरे साथ काफिले में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनको कोई परेशान न करे। ये लोग भी उतने ही दिनों से भूखे हैं जितने दिनों से हम बड़े लोग भूखे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी
भी उतने ही दिनों से प्यासे हैं जितने दिनों से बड़े लोग हम बड़े लोग प्यासे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी उतने ही दिनों से जगे हुए हैं जितने दिनों से हम बड़े लोग जगे हुए हैं। इन लोगों ने भी अली अकबर को करते हुए देखा है। इन छोटे छोटे बच्चों ने भी अली असगर के हल्क पर तीर पैबस्त होते हुए देखा है। इन छोटे छोटे बच्चों ने भी कासिम की जवानी लुटते हुए देखा है। इन छोटे छोटे बच्चों ने भी हजरत अब्बास के बाजू करते हुए देखा है। इसलिए अब इन्हें कोई ना सता है। हजरत ज़ैनब कुबरा है टूटा हुआ खंजर लेकर पहरा दे रही है कि अब मेरे काफिले वाले को कोई ना सता है, मेरे काफिले वाले को कोई परेशान ना करे। हजरत ज़ैनब टूटा हुआ खंजर लेकर रात के तारीकी में अपने काफिले वालों के चारों तरफ घूम घूम कर पहरा देती है। ऐ हुसैन ये आलम तसव्वुर में करबला चलो और करबला वाले आका हुसैन की पाक बहन सैयदा ज़ैनब की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के नजराने पेश करने के बाद अर्जी लगाओ, ए सैयदा ज़ैनब आपने जो टूटा हुआ खंजर उठाया है, अरे टूटे हुए खंजर से क्या होगा? आपने दिल के उजाले में अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि करबला के मैदान में सही सलामत भाले भी थे, करबला के मैदान में सही सलामत पर्चियां भी थी, करबला के मैदान में सही सलामत तलवारें भी थी, लेकिन अंजाम ज़ैनब तूने अपनी आंखों से देखा है, मगर फिर भी तू टूटा हुआ खंजर लेकर पहरा दे रही है। अरे टूटे हुए खंजर से क्या होना है? तो ज़ैनब कुबरा जवाब देंगी, गौर से सुनिएगा दीवानों। ज़ैनब कहेंगी, ऐ लोगों मेरे हाथ में टूटा खंजर जरूर है, लेकिन ऐ लोगों मेरे टूटे हुए खंजर को ना देखो, अरे खंजर टूटा है, ज़ैनब का हौसला बड़ा मजबूत है। सुनाया जा बोल भाई, इतना धीरे बोलिएगा जी तो कहाँ हम बोल पाए। हम 1.5 घंटा पौने 2 घंटा से बोल रहे तो आवाज मध्यम नहीं है, आप कहीं कहीं बोल रहे तो आपकी आवाज मध्यम पड़ गई। हुसैनी रंग में बोलिए या हुसैन, जोर से या हुसैन। जाना चाहते हो तकरीर फिर इस ज़िम्न की आगे सुन लीजिएगा कभी। सुनिए, इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब पहरा दे रही है। टूटे हुए खंजर को उठाकर हमने आलम तसव्वुर में पूछा, ज़ैनब टूटे खंजर से क्या होता है? तो जवाब देंगी हजरत ज़ैनब, अरे मेरा टूटा हुआ खंजर तो है मगर मेरा दिल बड़ा मजबूत है। सुभान अल्लाह, मेरा दिल बड़ा मजबूत है, इसलिए कि शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब, शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब। हर जुल्म के लिए आंधियों तूफान है ज़ैनब। सज्जाद को जलते हुए खेमे से निकाला, रस्सी बंधे हाथों में बड़ी जान है ज़ैनब। खेमे से निकाला, रस्सी बंधे हाथों में बड़ी जान है ज़ैनब। हजरत ज़ैनब पहरा दे रही है कि अचानक अल मुख्तसर अचानक ज़ैनब कुबरा के कानों में किसी के रोने की आवाज आई, किसी के हिचकी लेने की आवाज आई, किसी के सिसकियों की आवाज आई, किसी के रोने की आवाज आई। हजरत ज़ैनब अपने ताफले में देख रही है कि आखिर कौन है जो इतनी जोर से हिचकियां ले रहा है, इतनी जोर से सिसकियां ले रहा है, इतनी जोर से रो रहा है, इतने दर्द कर्ब के साथ आंसू बहा रहा है और आवाजें निकाल रहा है। हजरत ज़ैनब अपने काफिले वालों पर नजर करती है, मगर यहाँ रोने वाला नजर नहीं आता है, यहाँ कोई रोने वाला नहीं है। फिर भी हजरत ज़ैनब के कान में रोने की आवाज आ रही थी। हजरत ज़ैनब ने मैदान करबला की तरफ अपने 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 अंगूठे के बल ऊंचा होकर देखा तो क्या देखती है कि करबला के मैदान में एक लाश के ऊपर हजरत इमाम हुसैन की 5 या 6 साल की बेटी सकीना है जो सर रख कर रो रही है। हजरत ज़ैनब बड़ी तेजी के साथ जाती है और उठाती है, सकीना को सीने से लगाती है और पूछती है, बेटा ज़ैनब ये तो बता आखिर तू यहाँ क्यों रो रही है? बेटा ज़ैनब यहाँ कैसे आ गई? तो हजरत ज़ैनब से इमाम हुसैन की 5 साल की बेटी
कहती है ए फूफी जान, आप जब बच्चों को देख रही थी कि बच्चे सोए हैं कि जागे हैं, और जब पहरा देने लगी और आपने महसूस कर लिया कि बच्चे सो गए हैं, मगर मैं सोई नहीं थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं तो दुबक गई थी। मैंने मौका को गनीमत समझा और करबला के मैदान की तरफ मैं दौड़ कर आ गई हूँ और आवाज दिल से देते हुए निकली थी कि ए बाबा हुसैन, जब तक आप थे आपकी बेटी सकीना आपके सीने पर रखकर सीने पर सर रखकर सोती थी, सकीना को नींद आ जाती थी। ए बाबा, आज आप नहीं है तो आपकी बेटी सकीना से नींद उठ गई है, सुकून खत्म हो गया है, चैन पे चैन बनकर मेरे गले का चैन बनकर आज लटक रहा है। ए मेरे बाबा हुसैन, सीना अता करो, अपनी बेटी सकीना को सुनाओ। फूफी जान, मैं दौड़ती हुई आई थी। हजरत ज़ैनब कहती है बेटी सकीना, मगर ये तो बता आखिर तू किसके जिस्म पर अपना सर रखकर रो रही थी, किसकी लाश पर तूने अपना सर रखकर आंसू बहाने वाला मामला पेश किया है? छोटी सी सकीना है, फूफी ज़ैनब से कहती है ए फूफी जान, ये कोई और नहीं है, ये मेरे बाबा हुसैन है, ये मेरे बाबा हुसैन है। हुसैनी रंग में बोलो या हुसैन, जोर से या हुसैन, ये मेरे बाबा हुसैन है, बाबा हुसैन है। हजरत ज़ैनब कहती है आखिरी बात बोलूंगा, बातें बहुत है। दमिश्क से करबला से कूफा, कूफा से दमिश्क, दमिश्क से मदीना पहुंचाने में तो बहुत टाइम लगेगा। 36 मकामात पर 36 मंजिलों को तय करने के बाद मदीना पहुंचेंगे। तो 36 मनाजिल बहुत दूर है भाई, कम से कम मुझ जैसे खाकसारों गुनहगार को 36 घंटा, और ये बड़े लोगों को तो 36 दिन भी करना। सुनिए, आखिरी बात कह रहा हूं और खत्म करूंगा। हजरत ज़ैनब कहती है बेटा किसकी लाश पर अपना सर रखकर रो रही है? हजरत ज़ैनब कहती है मेरी, हजरत ज़ैनब से उनकी बेटी भतीजी हजरत सकीना कहती है फूफी जान, ये कोई और नहीं है, ये तो मेरे बाबा हुसैन है। सुभान अल्लाह, ये मेरे बाबा हुसैन है, बाबा हुसैन है। ज़ैनब कुबरा कहती बेटी करबला के मैदान में सर यजीदी तन से जुदा करने के बाद अपने साथ ले गए हैं, यहाँ तो जिस्मों पर जख्मों के इतने निशानात हैं कि पता लगाना मुश्किल है कि कौन सी लाश किसकी है। लेकिन बेटा सकीना, ये तो बता तुमको कैसे मालूम हुआ कि ये तेरे बाबा की लाश है, ये तेरे बाबा का जिस्म है? हुसैनी जिंदा दिल लोगों गौर से सुनना, और मेरे आखिरी जुमले पर हो सके हुसैन की मोहब्बत आवाज दे दे तो खड़े होकर सारे लोग नारे के साथ इस जुमले का इस्तेमाल करना। ज़ैनब से सकीना कहती है ए फूफी जान, अब तक तो मैं भी नहीं जान रही थी ये मेरे बाबा है कि नहीं, लेकिन ज़ैनब कुबरा सुनिए, जब मैं चिल्लाती दिल से आवाज लगाती करबला की तरफ आ रही थी, तो इसी भर से आवाज आई थी बेटी सकीना कहाँ हो, इधर आ, तेरे बाबा का जिस्म यहाँ मौजूद है। इसी धड़ से आवाज आई थी कि सकीना 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 आ, तेरे बाबा हुसैन का जिस्म यहाँ है। इसीलिए मैं जान गई मेरे बाबा यही है। रब फरमाता है जो राहे खुदा में कुर्बान कर दिए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा लोग, बोलिएगा जिंदा लोग, बल्कि वो जिंदा है। तभी तो शायर कहता है कि शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, यजीद डूब